हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रेम मिश्रा मैथ्स क्लासेस। माय सेल्फ प्रेम मिश्रा। आज जो मैं आपके टॉपिक लेके आया हूं, टॉपिक का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टीज पे स्टार्ट करेंगे। मींस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी हाउ टू सॉल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधे प्रॉपर्टी पर आते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास थी वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस। अभी जो हम चल रहा है वो प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल फॉर्मूला इज sin इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। व्हेन x यहां पर बेटा क्या होना चाहिए, x को समझिए कि तुम x mod x is greater than or equals to 1। greater than or equals to 1 का मतलब होता है कि x की वैल्यू greater than or equals to 1 और minus x is less than or equals to minus 1। मींस ये जो x होगा वो 1 से ज्यादा होगा और minus 1 से कम होगा। सेकेंड वन, cos इनवर्स 1 upon x equals to sec inverse x। इसके लिए भी प्रॉपर्टी mod x is greater than or equals to 1। and third, tan inverse 1 upon x। यहां पर दो कंडीशन होंगी। नंबर 1 cot inverse x और नंबर 2 minus pi plus cot inverse x। This can be when x is greater than 0 and this can be when x is less than 0. See how to prove it. Number 1, let sin inverse 1 upon x को आपने बच्चों क्या ले लिया, थीटा। Then 1 upon x equals to sin थीटा। अब 1 अपॉन x इक्वल्स टू साइन थीटा है तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, cosec थीटा। देन थीटा इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। और थीटा था क्या, आप यदि थीटा की बात करें तो थीटा वाज द साइन इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू cosec इनवर्स। Okay, theta was this one. Okay. Now, this next property is here student is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi। This can be applied when mod x is less than 1. Second one, tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. This one x belongs to R. Third one, cosec inverse x plus sec inverse x equals to pi by 2 and mod x is greater than 1. So these three properties are here. First, sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 when mod x is less than or equals to 1। mod x is less than or equals to 1 means beta x की value greater than minus 1 and less than plus 1। mod x is greater than belongs to R means real number, and this one x is greater than or equals to 1 and x is less than or equals to minus 1। प्रूविंग देखते हैं, किसी एक की मैं प्रूविंग बताऊंगा, रेस्ट को आप अपने सेम वर्किंग से अप्लाई करोगे। तो इसकी प्रूविंग देखते हैं। सबसे फर्स्ट, sin inverse x is equals to theta। then x equals to sin theta। at the place of sin we can write cos pi by 2 minus theta।
equals to x. This cos can be shifted this side, so cos inverse x is equals to pi by 2 minus theta. Then minus theta will be shifted here, so theta plus cos inverse x equals to pi by 2. And children, we have assumed here theta was sin inverse x. So at the place of theta, I can write sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. Okay, so this is the proving of the first part. Rest two part you will do by yourself. Now this friend, after the property, now we see to which type question can be asked. The question is given here, find sin tan inverse x plus tan inverse 1 upon x. This value you have to find. So children, we know that tan 1 upon x is equals to cot inverse x when x is greater than 0. So in this question, x is greater than 0 given है आपको, तो tan 1 inverse 1 upon x के प्लेस पर आप cot inverse x ले सकते हो. तो sin tan inverse x plus cot inverse x. अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. इसके प्लेस पर बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin pi by 2 because tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. तो children, we have to learn this formula. तो sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1. So this type question can be asked in 2 marks question. Okay. So children, this question is given here. If x comma y greater than minus 1 and less than or equals to plus 1 and sin inverse x plus sin inverse y equals to pi by 2 is given, and we have to find the value of cos inverse x plus cos inverse y. So now the children, we can see here, since we know that sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. Okay, so at the place of sin inverse x, we can write pi by 2 minus cos inverse x. So sin inverse x is equals to pi by 2 minus cos inverse. Similarly, हम sin inverse y के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y. यानी साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y. इन दोनों वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चन में उठाकर पुट कर दें. तो साइन इनवर्स x के प्लेस पर क्या पुट किया हमने, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, पाई बाय 2 माइनस cos inverse y equals to pi by 2. This pi by 2 will be cancelled out by this pi by 2. Minus minus shift कर दो आप, तो pi by 2 equals to cos inverse x plus cos inverse y. This is your answer. मतलब आपको cos inverse x plus cos inverse. देखो ना, this question is given here tan inverse x minus cot inverse x equals to tan inverse 1 by root 3 and we have to find the value of x. तो हम करेंगे कैसे कि tan inverse x minus cot inverse x, tan inverse. अब 1 by root 3 किसकी वैल्यू होगी, 1 by root 3 होगी बेटा tan pi by 6. इसकी वैल्यू होगी tan pi by 6. तो tan inverse tan pi by 6, pi by 6. So tan inverse x minus cot inverse x equals
equals to pi by 6. Okay? Now, since we know that कि tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. We know this property tan inverse x plus cot inverse x. अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए. अब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो tan inverse x plus tan inverse x pi by 6 plus pi by 2. जब इसका एलसीएम आपने लिया तो 6. So this will be pi plus 3 pi. That will be 4 pi by 6. 2 तो tan inverse x equals to pi by 3 क्योंकि 2 से आपका 6 भी कैंसिल हो गया. ओके ना. तो x इक्वल्स टू क्या होगा tan pi by 3. So final answer x equals to root 3. Okay. Question is given here sin cos inverse pi by 13 plus sin inverse x equals to 1, and in this question we have to find the value of x. So how we can do it? First of all, देखिए इस साइन को हम इधर शिफ्ट कर दें. तो हम शिफ्ट करेंगे तो cos inverse 5 by 13 plus sin inverse x equals to sin inverse 1. साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है तब क्या होती है पाई बाय 2. आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया होगा तो मैं डायरेक्ट अब इसके प्लेस पर पाई बाय 2. सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 5 by 13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. अब मैं साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो कॉस इनवर्स 5 by 13 equals to pi by 2 minus sin inverse x. Now we know that sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. So pi by 2 minus sin inverse x equals to cos inverse x. So cos inverse 5 by 13 equals to cos inverse x. तो चिल्ड्रन x की वैल्यू क्या होगी आप इनको कंपेयर करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x 5 by 13. सो चिल्ड्रन दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू. ओके ये अब सारे क्वेश्चंस आप पहले कर लेंगे. चलिए स्टार्ट आफ्टर द क्वेश्चंस. अब जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. यदि आप देखोगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में तो 60% क्वेश्चन आपको उसी प्रॉपर्टी से मिलने वाले हैं. So property is given here tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and second one pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो अब आप कह रहे हो सर दो फॉर्मूले. हाँ ये दो फॉर्मूले हैं. इनको कब यूज करना है? दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल व्हेन x into y less than 1 and this formula will be applicable when x is greater than 0, y is greater than 0 and x into y is greater than 1. ओके स्टूडेंट्स. तो इस पेज पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन इज गिवन हियर tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 इक्वल्स टू. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3. तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए x के प्लेस पर यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 by 2, y के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1 by 3. तो 1 by 2 into 1 by 3 which is 1 by 6. 1 by 6 जो है बेटा वो x into y मतलब लेस देन 1 है. ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. इनको हमने मल्टीप्लाई किया 1 by 6 आया which is less than 1. अब लेस देन 1 है तो which फॉर्मूला we have to apply? फर्स्ट वन. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स
1/2 plus 1/3 upon 1/2 into 1/3. So tan इनवर्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5/6 अपॉन 5/6, ये 5/6 से 5/6 कैंसिल हो गया एंड आंसर इज tan इनवर्स 1. और tan इनवर्स 1 को बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू किसकी होती है, π/4, तो π/4, तो फाइनल आंसर इज π/4. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी का हम लेते हैं कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है. अब देखिए x के प्लेस पर बेटा क्या हो गया 2, y के प्लेस पर क्या आ गया 3, तो हम x इंटू y करें, मतलब 2 इंटू 3 विच इज 6, विच मोर देन 1. तो इसकी जो वैल्यू है मोर देन 1 है, तो विच फॉर्मूला भी आपको अप्लाई, सेकेंड वन, यानी हम क्या लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, तो 2 प्लस अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 3, सो पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, 2 प्लस 3, 1 माइनस 6, 5 will be cancelled out, pi plus tan inverse minus 1. Since we know tan inverse minus x equals to minus tan inverse x, this property we know here. So tan ये हो जाएगा आपका pi minus tan inverse 1, और tan inverse 1 की वैल्यू π/4, so pi minus π/4, then final answer is 3π/4. Okay students, now we see how to prove this property. देखिए tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो children we have to prove how to, देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे. प्रूफ करने के लिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम लिखेंगे लेट tan inverse x is equals to alpha, then the value of x tan alpha, and tan inverse y is equals to beta, then y is equals to tan beta. X equals to tan alpha, y equals to tan beta. तो हमने क्या किया कि tan इनवर्स x को अल्फा ले लिया, tan इनवर्स y को हमने बीटा ले लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी tan अल्फा, y की वैल्यू क्या होगी tan अल्फा. अब समझो, सिंस हम लोगों ने 11 में फॉर्मूला पढ़ा था tan अल्फा प्लस बीटा का, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा. ओके ना, tan अल्फा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं x, tan बीटा के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा को आप tan को शिफ्ट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. बड़ा अल्फा में क्या जुड़ गया था tan इनवर्स x, बीटा क्या जुड़ गया था tan इनवर्स y. तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, हम अल्फा के प्लेस पर लिख देंगे tan इनवर्स x, बीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो चिल्ड्रन दिस इज द प्रूविंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. Now we see the next property, tan inverse x minus tan inverse y. अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था tan inverse x plus tan inverse y. तो फॉर्मूला क्या होगा, tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Okay, and this formula will be applicable when x into y greater than minus 1.
x इंटू वाई की वैल्यू -1 से कम। अब बेटा हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा। x इक्वल्स टू tan अल्फा एंड y इक्वल्स टू tan बीटा। Since we know that the formula tan alpha minus beta is equals to tan alpha minus tan beta divided by 1 plus tan alpha into tan beta। tan alpha बेटा हमारे पास क्या है, x, तो tan alpha के प्लेस पर आपने x रख दिया। tan बीटा की वैल्यू आपने क्या ली हुई, y, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या दिया, वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और अल्फा के प्लेस पर tan इनवर्स y और बीटा के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स, अल्फा के प्लेस पर tan इनवर्स x, बीटा के प्लेस पर tan इनवर्स y। ओके, नाउ सी द फॉर्मूला नंबर 3, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से ही आप निकाल सकते हो। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप कैसे ला सकते हो, आप याद तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ यदि आपको प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था आपके पास, y के प्लेस पर भी क्या रख दीजिए, x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x विल बिकम 2 tan इनवर्स x। इसका साइन के टर्म में फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin inverse 2x upon, so these three formulas which we have to learn, a very important formula बेटा जिन्हें आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, अब चलिए हम देखेंगे फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, then formula is sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला स्टूडेंट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चिल्ड्रन इस दोनों फॉर्म में बहुत बेसिक डिफरेंस है, यहां जब प्लस है तो यहां पर प्लस है, यहां जब माइनस है यहां पर भी माइनस है। नेक्स्ट फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दिस कैन बी cos इनवर्स x into y minus 1 minus x square and 1 minus y square, and cos inverse x minus cos inverse y, then formula cos inverse xy plus 1 minus x square and 1 minus y square. These four formulas in the respect of sin inverse x and cos inverse x. अब लेट अस सी कि हम इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। अब हम इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है तो क्या करेंगे, पहले तो प्रूविंग आएगी नहीं, मैं आपको बता दूं बोर्ड में प्रूविंग बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी आप समझते हैं कि लेट
साइन इनवर्स x इक्वल्स टू आपने अल्फा एंड साइन इनवर्स y को आपने क्या एज्यूम कर लिया, बीटा। ओके, सो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी यहां से, साइन अल्फा एंड y विल बिकम साइन बीटा। सिंस वी नो दैट क्लास 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो बेटा देखो साइन अल्फा और साइन बीटा ये दो वैल्यू हमारे पास है, साइन अल्फा है साइन बीटा, बट है क्या नहीं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ये दो वैल्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू सॉरी साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, x, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोथ द वैल्यूज वी कैन पुट इट हियर। तो साइन तो चलिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई, तो साइन अल्फा के प्लेस पर साइन अल्फा की वैल्यू, साइन बीटा के प्लेस पर साइन बीटा, कॉस बीटा के प्लेस पर ये और कॉस अल्फा के प्लेस पर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा क्या हमारे पास है x, कॉस बीटा हमारे पास क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या है, अल्फा है साइन इनवर्स x, बीटा है साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, this question is given here, prove that sin inverse 1 by root 5 plus sin inverse 2 by root 5 equals to pi by 2। तो अभी हम लोग sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, sin inverse x plus sin inverse y is equals to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। अब बेटा x के प्लेस पर क्या है 1 by root 5 और y के प्लेस पर क्या है 2 by root 5, तो sin inverse 1 by root 5 under root 1 minus y square, 2 upon root 5 square 4 by 5, y 2 by root 5 and 1 minus x square, x के प्लेस पर क्या है 1 by root 5। okay, so this can be sin inverse 1 by root 5 into 5 बन गया, so 1 by root 5, 2 by root 5 into 5 minus 1 4, तो 2 upon root 5, तो sin inverse 1 by 5 and 2 2 जा 4 upon 5, this is sin inverse 1, then final answer is pi by 2। So children, very simple topic है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको यूज करना है, इन फॉर्मूले में आपको अपनी वैल्यूज पुट अप करनी है और आप अपने आंसर्स बहुत स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर लोगे। ओके